Let everyone join the lecture. We'll begin the lecture within 2 minutes. Get ready for the semester 2. Namo Namaha once again. Let's begin with the lecture. As we have completed semester 1, today we are going to begin with the semester 2. New poems, new lessons. So we have completed Sankhya Visheshanani in semester 1 and some topics of writing skills also. Now we have to begin with the new poem, that is Sukti Sudha. From this page number 45, our semester 2 portion will begin. So as you know the meaning of Sukti, what is the meaning of Sukti? Quickly tell me. We have seen various poems like Avyay Mala, Vidyartha Mala. तो हर एक poetry का नाम जो होता है, that indicates the theme of that whole poem. So what is the meaning of Sukti? Can you guess the meaning? Okay, I will give you some examples. So we have heard the sentence Satyameva Jayate. Satyameva Jayate. या फिर सदरक्षणाय खल निग्रहणाय. सत्यमेव जयते, कहाँ पे देखा है हमने ये सेंटेंस? Very good. It was a show. Correct. And yes, it is used in court. And what about Sadrakshanaaya Khalanigranaya? Yes, Ankita is saying correct. It is a quotation for police. Yes, so from all these sentences, we get to know that these sentences are nothing but a suktis. Correct. So, suktis means nothing but good sayings, suvichar, quotations. And Sudha means nectar, amrut. Yes. So simply, here poet is explaining that all the suktis or quotations or shlokas given here is equal to nectar, just equals to drinking a nectar. बहुत ही मधुर सुभाषित यहाँ पे सुभाषित माला में जिसका नाम सूक्ति सुधा है वहां पे पेश किए गए हैं. Again, you can observe in the right hand side, we have a word kanthastikaranartham. What does it mean? Kanthastikaranartham. Yes, so we have to by heart this poem. कंठस्थ करना है हमें, learn करना है, recite करना है ये poem को. मतलब complete the verse question will be there in exam. Okay, so first of all, let's today just read the poem, try to by heart the verses and try to write down the verses. Okay, step number 1 करते हैं. पहला क्वेश्चन जो आने वाला है complete the verse के लिए आज हम प्रैक्टिस करेंगे. I'm reciting the first shlok, listen it and then you have to recite it by unmuting yourself. So be ready. So here is the first shlok. Nachoraharyam, nacharajaharyam, nachoraharyam, nacharajaharyam, na bhratrubhajyam, nacha bharakari, na bhratrubhajyam, nacha bharakari, vyaye krute vardhata eva nityam. व्यये कृते वर्धत एव नित्यम.
विद्याधनं सर्वधनप्रधानं, विद्याधनं सर्वधनप्रधानं. Yes, so who will try to read this shlok? Just read or try to recite it. Quickly raise your hand. Yes, Sandhya. Hello, ma'am. Hello, Sandhya. First shloka. न चोर्याय न राधार्य न भ्रातुर्भाजं न च वार्कारि व्यये कृतिवर्धन एव नित्यं विदाधनं सर्वधन प्रधानम्. Okay, विद्याधनम. फिर से एक बार रिसाइट करो. विद्याधनम. विद्याधनं. Very good, very good. Very nice, Sandhya. Yes, Purva. Same verse. Hello, ma'am. Hello, Purva. Good evening. Good evening, ma'am. Yes, same verse. First. न चोरहार्यं न च राज्यहार्यं न भ्रातृभ्राज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धयेत् एवं नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्. Okay, nice. Very good. So, in this manner, you have to learn first shloka. Abhi now let's move ahead to the reading part of second shlok. Ayam nijah paro veti ganana laghu chetasam. Ayam nijah paro veti ganana laghu chetasam. Udaracharitanantu udaracharitanantu vasudhaiva kutumbakam. Vasudhaiva kutumbakam. Last time I am repeating full shlok. अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्. Yes, Ankita, recite the second shlok. Hello, miss. Hello, Ankita. Second shlok, please. Okay. Ayam nijah paroveti gana paroveti ganana laghu chetasam udar charitanam tu vasudhaiva kutumbakam. Very nice, very nice. All the words are perfect. Great. Thank you. Yes, Purva. Yes, ma'am. अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्. Very good. Very clear pronunciations. Nice. Okay, let's move on to the third shlok. Sandhya, you will get a chance for third shloka. Okay. Yes, students. So, how to read or recite the third shlok? परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः. परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः. परोपकाराय वहन्ति नद्यः. परोपकाराय वहन्ति नद्यः. परोपकाराय दुहन्ति गावः. परोपकाराय दुहन्ति गावः. परोपकारार्थमिदं शरीरम्. परोपकारार्थमिदं शरीरम्. Yes, Sandhya. Can you Hello, recite the ma'am. third one? Hello. Yes. Can you recite third? Yes. Yes. Start. परोपकार्य फलन्ति वृक्षाः परोपकार्य वहन्ति नद्यः परोपकार्य दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम्. Very nice. Very nice. Yes. Next, Purva. Yes, Purva. Unmute yourself. Miss, can I start? Yes. Yes. Start. परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम्. Okay. Very good.
परोपकारार्थमिदं शरीरम. Now next, fourth shloka. This is a shloka of 4 lines, तो थोड़ा इसका ट्यून भी थोड़ा डिफरेंट होगा. जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम. जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम. मान्नोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति. मान्नोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति. चित्तं प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं. चित्तं प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं. सत्संगति कथय किं न करोति पुंसां. सत्संगति कथय किं न करोति पुंसां. ओके, थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स है, आराम आराम से रीड करो. लास्ट टाइम फिर से एक बार मैं बोल रही हूँ क्या क्या वर्ड्स है, जस्ट रीड करके बता रही हूँ अभी. जाड्यम धियो हरति सिंचति, जैसे पंच बोलते हो वैसे ही सिंचति. वाचि सत्यम. मान्नोन्नतिम, डबल न है तो जैसे अन्न, अन्न वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं वैसे ही मान्नोन्नतिम. दिशति पापमपा करोति. दो वर्ड्स है पापमपा करोति, बट हम रिसाइट करते वक्त पापमपा करोति एक साथ बोलेंगे. चित्तम प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम. दिक्षु तनोति कीर्तिम. सत्संगति ही, ये जो यहाँ पे ङ है दैट इज अनुस्वार, सो सत्संगति ही. सत्संगति ही, सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम. पुंसाम नहीं, पुंसाम. ओके, तो ये जो पुंसाम वर्ड है मैन के लिए यूज किया गया है, समान अर्थ है. सो लास्ट टाइम आई एम रिसाइटिंग दिस डिफरेंट एंड डिफिकल्ट श्लोक. जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम. मान्नोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति. चित्तं प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं. सत्संगति कथय किं न करोति पुंसां. Yes, so who is ready to recite this shlok? Just try it once. It is okay if you are making a mistakes. Yes, Sandhya. Hello, ma'am. Ma'am, Yes, yes, you are audible. Recite. जाड्यम दियो हरति सिंचति वाचि सत्यम. मानन्ति दिशति पापमपाकरोति. चित्तं प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति. सत्संगति कथय किं न करोति पुंसां. Wow, very good. बहुत अच्छे से pronounce किया है संध्या. Keep it up. Okay, next. Yes, Ayush. Yes, Ankita, can you recite fourth shlok? Hello, miss. Yes, fourth shloka. Okay. जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं. मानोन्नति दिशति पापमपाकरोति. चित्तं प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति. सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्. Very good, very good. Yes, now I want someone to recite third shloka. As Soham was disconnected, so he wants the pronunciations of third shlok. Yes, Purva, recite the third one. Yes, ma'am. परोपकार्य फलन्ति वृक्षाः परोपकार्यः वहन्ति नद्यः परोपकार्य धुवन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम्. Okay, Purva, very nice, but just a little mistake. परोपकार्यः नहीं, परोपकाराय. Okay, ma'am. Okay, अभी replace the word everywhere and recite once again. परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय धुवन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम्. Very nice. Now it is perfect.
Yes, most welcome, Soham. Okay, now let's move on to the fifth shloka. Yatra naryastu pujyante ramante tatra devataha. Yatra naryastu pujyante ramante tatra devataha. Yatraitastu na pujyante yatraitastu na pujyante sarvas tatra phalah kriyaha. Sarvas tatra phalah kriyaha. Little bit difficult because many sandhis are there. Last time I'm repeating it. Yatra naryastu pujyante ramante tatra devataha. Yatraitastu न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः. सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः. Okay, so yatra naryastu pujyante ramante tatra devataha. Yatraitastu न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः. ये जो वर्ड है इसके 3 पार्ट्स डिवाइड करो तो इजी जाएगा. सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः. Yes, Sandhya, try to recite it. Hello. Yes, you are audible. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता यत्रेतासु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः. Very good, perfect. Okay, so here we have completed the recitation part of the shlokas. Now let's focus on first shlok. Nachorya haryam nacharaja haryam. बहुत ही सिंपल सा वर्ड है. चोर मीन्स you have seen this word in sushtu gruhitah chaurah. So chor means thief. Na chor haryam and nacha raja haryam. तो ये हार्य जो वर्ड यहाँ पे यूज किया है मतलब हरण करना हमने हिंदी में सीखा हुआ है, वहां से ये वर्ड आया हार्य. मतलब स्टोलन. इट कैन नॉट बी स्टोलन. ऐसी कोई ये ऐसी चीज है जो हम चुरा नहीं सकते. वी कैन नॉट स्टील दैट थिंग. सेकंड और एक उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. नच राजा हार्यम. राजा भी उसको नहीं ले सकता है. इवन अ किंग कैन नॉट टेक दिस थिंग फ्रॉम अस. न भ्रातृभाज्यम. तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स या डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि न मीन्स नॉट. भ्रातृ मीन्स अमंग ब्रदर्स. भाज्यम मीन्स डिविजन. डिविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट पॉसिबल अमंग ब्रदर्स. जैसे प्रॉपर्टी डिवाइड होती है. ओके बहुत सारे सीरियल्स एंड मेलोड्रामास एंड मूवीज में हमने देखा है कि प्रॉपर्टी के लिए बहुत चक्कर होते हैं. तो सब भाइयों में ये प्रॉपर्टी डिवाइड की जाती है. बट ये एक ऐसी चीज है जो भाइयों में भी डिवाइड नहीं हो सकती. नेक्स्ट है नच भारकारी. भार मीन्स बर्डन, हेवी थिंग. तो ये चीज बिल्कुल भी कभी हेवी नहीं होती है, कभी भी हमारे ऊपर बर्डन नहीं होती है. कौन सी चीज है ऐसी? तो सेकेंड लाइन में और थोड़ा उसको डिस्क्राइब किया है. व्यय कृते. व्यय मीन्स खर्च करना, स्पेंड करना और शेयर करना. इसको हम जितना ज्यादा स्पेंड करते हैं, शेयर करते हैं, वर्धते एव. वर्धते मीन्स बढ़ती जाती है, इंक्रीज ही होती है. नित्य मतलब ऑलवेज. मतलब ऐसा नहीं है कि कभी खर्च किया तो कम हो जाएगी. बिल्कुल नहीं. कभी भी खर्च करो, नित्यम ऑलवेज इसको खर्च करो, स्पेंड करो, शेयर करो सबके साथ, बस बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगा कभी. क्या है ऐसा? विद्या धनम. विद्या मीन्स नॉलेज, धन मीन्स वेल्थ. बाकी कोई भी वेल्थ ले लो, आपके पास कितने भी सारे ऑर्नामेंट्स हो, बहुत सारे पैसे हो, ये जो वेल्थ होती है वो कभी ना कभी डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. ओके आज पॉकेट में 2000 रुपीज है, आते आते मैंने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली 500 रुपीज से 700 रुपीज की, तो 2000 में से 700 रुपीज खर्च हो गए, कम हो गया. अभी मेरे पॉकेट में 2000 नहीं है. नाउ इट इज लेस देन 2000. मतलब ऐसी वेल्थ जो हम वेल्थ जो होती है वो खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं तो कम हो जाती है. बट नॉलेज ऐसी वेल्थ है जो खर्च करने के बाद, स्पेंड करने के बाद भी कम नहीं होती है. आई होप आपने सुना रहेगा कि जितना हम नॉलेज शेयर करते हैं उतना ही वो बढ़ता जाता है. इट इंक्रीजेस ऑलवेज. ये कैसे बढ़ता है, कभी सोचा है?
ऐसे ही आज मैंने ये सुक्ति सुधा का नॉलेज आपके साथ शेयर कर लिया और अचानक रात को मुझे और एक पोएट्री संस्कृत की बाय हार्ट हो गई, बस सोते सोते, कुछ मेहनत नहीं ली, बस बाय हार्ट हो गई। ऐसे नॉलेज बढ़ा मेरा। वेरी गुड सोहम। 1% to other person when we डू द कॉन्वर्सेशन। अभी हम तो एक्टिव क्लास में नहीं है, वी आर ऑन ऑनलाइन मोड, तो इंटरेक्शन बहुत कम है, बट जब भी इंटरेक्ट विद अदर्स, जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उनके थॉट्स हमारे पास आ जाते हैं, अपने थॉट्स उनके पास चले जाते हैं, गिविंग टेकिंग एंड गिविंग का प्रोसेस हो जाता है, एंड इसीलिए क्या होता है कि मेरा भी नॉलेज बढ़ जाता है। अभी यही जो श्लोक है अबाउट नॉलेज, इसके लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है, शायद आपके मन में भी अभी कुछ एग्जांपल्स आ रहे होंगे कि कैसे विद्या जो है वो स्पेंड करने के बाद भी बढ़ती है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स, एग्जांपल्स, एक्सपीरियंसेस हमारे पास भी होते हैं। व्हेन वी शेयर दैट एक्सपीरियंसेस हमारा नॉलेज बढ़ता है। ओके, ऑल्सो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जब भी हम किसी के साथ कोई चीज शेयर करते हैं तो हम एम्प्टी हो जाते हैं, जस्ट लाइक अ क्लाउड, व्हेन क्लाउड शेयर्स द वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन, वो एम्प्टी हो जाता है क्लाउड, तो वैसे ही हम भी एम्प्टी हो जाते हैं। तो एम्प्टी हैंडेड नहीं रहना चाहिए। अगर हमने कोई चीज अभी सबको बता दी है, शेयर कर ली, तो और कुछ नया हमारे पास होना चाहिए। तो ऑलवेज कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, ओके, देन यू विल गेट अपडेटेड। तो ये भी एक थॉट यहाँ पे फ्रॉम दिस श्लोका वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए विद्या धनम, हमारा कोटेशन क्या है बाय द वे, पिंक कलर में हाईलाइट किया हुआ सब सूक्तिज है, कोटेशन है। कोटेशन ये है, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। सर्वधन मतलब जितनी भी वेल्थ के प्रकार है उसमें सबसे बेस्ट कौन सा वेल्थ है, तो विद्या धनम है। द बेस्ट वेल्थ अमंग ऑल काइंड्स ऑफ वेल्थ इज नॉलेज। क्यों? क्योंकि इट कैनॉट बी स्टोलन, it cannot be taken by a king, it cannot be divided among brothers, it is not at all burden, and when we spend it, it increases. फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, knowledge is the best wealth among all kinds of wealth because it cannot be stolen, it is unable to steal or steal, in fact, then it is not taken by a king, it is impossible to take others knowledge। कोई भी राजा होकर भी किसी और का नॉलेज नहीं चुरा सकता। देन इट कैन नॉट बी डिवाइडेड अमंग ब्रदर्स। अगर 3 भाई है, उसमें से जो एक भाई है उसका मैथ्स का नॉलेज बहुत अच्छा है और 2 भाई जो है वो मैथ्स में वीक है, वी कैन नॉट डू द थिंग्स लाइक कि चल तेरा थोड़ा नॉलेज, इसको 20% दे दे, इसको भी 20% दे दे, शायद पास हो जाए एग्जाम में। इट इज हाईली इम्पॉसिबल। वो उनको ट्रेन कर सकता है, शेयर कर सकता है नॉलेज, बट डिवाइड नहीं कर सकता। ओके, सो नॉलेज cannot be divided among brothers also and it is not burden at all। आप कितनी भी डिग्रीज ले लो, वो कभी बर्डन नहीं होता है। ऐसे होगा क्या कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, एमबीए कर लिया और क्या अब पीएचडी कर ली तो बर्डन हो गया, अभी अभी नहीं सह सकता मेरा ये जो सिर है, ऐसे कभी लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। इसीलिए तो लोग बहुत ज्यादा सीखते हैं। ऑलवेज दे कीप लर्निंग एंड नॉट ओनली डिग्रीज। आप बहुत कुछ सीख सकते हो, आप डांस सीख सकते हो, आप स्विमिंग, आप वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये जो भी आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर रहे हो वो भी एक लर्निंग है, टाइप ऑफ अ लर्निंग, नॉलेज है वो भी एक। ओके, तो जो भी स्किल्स आप एक्वायर कर रहे हो इट इज एडिशनल टू यू एंड उसका कभी भी बर्डन नहीं होता। इनफैक्ट वो हमेशा आपको आपके पर्सनालिटी में एक एडिशन करता है। तो बस ये सब थॉट्स आपको देने हैं फ्रॉम द फर्स्ट श्लोक, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। आई होप द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड इज क्लियर। यस और नो? Okay, then let's move on to the second shlok. Ayam nijah paroveti गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। बाय द वे, ये जो वसुधैव कुटुंबकम पिंक कलर में हाईलाइट किया हुआ सूक्ति है, हैव यू हर्ड दिस एनीवेयर? सोचो जरा, हम टेलीविजन देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, उसमें एड्स बहुत आते हैं, कभी कोई एड में देखा है वसुधैव कुटुंबकम?
अभी रिसेंटली वो ऐड नहीं दिख रहा है, बट कुछ मंथ्स पहले, बिफोर कोरोना में भी वी कैन से यस सोहम, राइट, हैप्पी फैमिली के बारे में ही ये कोटेशन है, वसुधैव कुटुंबकम। बट इंडियन टूरिज्म का जो एड आता था उसमें ये कोटेशन यूज होता था, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे ट्यून में। तो इसमें से दिखाना क्या है कि हम बहुत बार सुनते हैं अतिथि देवो भव। ओके, जब भी गेस्ट आते हैं इंडिया में, फॉरेनर्स आते हैं, तो हम उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। ऐसे बहुत सारे टूरिज्म इंडस्ट्री में दिखाया जाता है, और यही सेंटेंस बहुत टाइम से यूज हो रहा था, अतिथि देवो भव, इन टूरिज्म इंडस्ट्री। इंडियन टूरिज्म का जब एड होने लगा कि इंडिया में कितने ब्यूटीफुल प्लेसेस है, ये एड में वसुधैव कुटुंबकम क्यों यूज किया, तो बेसिकली वसुधा मीन्स होल अर्थ, एवा मीन्स itself, एंड कुटुंबकम मीन्स फैमिली। तो इंडिया ने एक अपने ही परंपरा से एक थॉट या मैसेज सबके सामने लेकर आया है इंडिया, दैट इज द होल वर्ल्ड इज माय फैमिली, एंड इफ आई एम assuming the whole world as my family, तो फॉरेनर्स भी अगर इंडिया में आ जाए, so I will treat them as my family। तो जैसे मैं मेरे फैमिली को, मेरे परिवार को ट्रीट करती हूँ, वैसे ही मुझे ये गेस्ट को, फॉरेनर्स को, टूरिस्ट को ट्रीट करना है। ऐसे इंडियन टूरिज्म ने वहाँ पे एक अच्छा मैसेज दिया हुआ था, एंड इट इज वेरी ग्रेट। एंड वहाँ पे ही हमारा ये जो संस्कृत कोटेशन है, वसुधैव कुटुंबकम, हैज बीन यूज्ड इन दैट एडवर्टाइजमेंट in nice way. So please do watch that advertisement on YouTube. Now let's understand the meaning. अभी वसुधैव कुटुंबकम का मीनिंग तो आपको पता चल गया कि the whole world is a family। तो बेसिकली इक्वालिटी का, ह्यूमैनिटी का, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आपको यहाँ से फ्रॉम सेकंड श्लोक मिलने वाले। लेट्स सी कि क्या एग्जांपल दिया हुआ है। अयम निजः एंड परः वा इति। अयम मीन्स दिस, निजः मीन्स मेरा है, एंड परः मतलब दूसरे का है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज माइन एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज अदर्स। ये जो हम करते हैं भेदभाव, ओके, ये पोएट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। Okay, so considering this is mine or this is of others is laghu chetasam. Laghu means short, chetas means mind. So narrow minded जो people होते हैं, they think like this, they do the what you can say, they do not follow the equality। जिनका दिल बड़ा नहीं होता, हम बॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं बड़े दिल वाले वगैरह वगैरह, दिलदार होते हैं, तो ऐसे दिलदार लोग जो है वो इतनी छोटी सोच नहीं रखते। ऐसे यहाँ पे पोएट को बताना है, पोएट यहाँ पे बता रहा है कि नैरो माइंडेड पीपल जो है, दे थिंक ऑलवेज दैट दिस इज माइन और दिस इज अदर्स, दे आर नॉट इक्वल। इक्वालिटी उनको बिल्कुल भी फॉलो करना नहीं आता है, और जो लोग ऐसे इक्वालिटी फॉलो नहीं करते, उनको यहाँ पे पोएट ने बोला लघु चेतसाम। वो याद रखना वर्ड, लघु चेतसाम, नैरो माइंडेड पीपल। एंड उदार चरितानाम, उदार चरितानाम मतलब बड़े दिल वाले, जो बहुत ही दया करते हैं दूसरों के ऊपर, ओके, एकदम हमेशा रेडी रहते हैं सबको हेल्प करने के लिए। ऐसे जो लोग होते हैं, उनका क्या सेंटेंस है, उनके लिए क्या है सूक्ति या फिर कोटेशन, उनके लिए एक ही कोटेशन है, वसुधैव कुटुंबकम। उनका बिहेवियर कैसा होता है, द होल वर्ल्ड इज लाइक अ फैमिली। तो बेसिकली दो टाइप्स के लोग यहाँ पे डिनोट किए गए, लघु चेतसाम एंड उदार चरितानाम। narrow minded and broad minded। Okay, so narrow minded people always thinks that there is a differentiation between us and other people, and the free minded people or the broad minded people always thinks that vasudhaiva kutumbakam, the whole world is my family, I will behave equally with each and every person। Is there any doubt? Okay, thank you Sandhya। Yeah, now let's move at the third श्लोक। आज एक और लास्ट श्लोक हम कर रहे हैं, that is third श्लोका। परोपकाराय, ये जो वर्ड है थर्ड श्लोक में आप देख सकते हो बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे।
ओके तो व्हाट इज परोपकार? बेनेवोलेंस, हेल्प यू कैन से, बट ये ऐसी हेल्प नहीं है, हेल्प को हम मदद भी कहते हैं हिंदी में। परोपकार मतलब कोई हमारे पहचान का नहीं है, फिर भी हम उसके ऊपर उपकार कर रहे हैं, बेनेवोलेंस कर रहे हैं, बिना मांगे किसी को हेल्प कर रहे हैं when he or she is in emergency situation, तो उसको कहते हैं परोपकार। ओके एंड परोपकाराय फॉर बेनेवोलेंस, दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है वृक्षाः फलन्ति, वृक्षाः मीन्स ट्रीज, फलन्ति मतलब बेयर फ्रूट्स, trees bear fruits for benevolence of others। पेड़ जो है वो अपने ऊपर बहुत सारे फलों का हेवी लोड कैरी करते हैं या फिर सहन करते हैं। why they are bearing that weight? बिकॉज परोपकार, बेनेवोलेंस। क्या कभी हमने देखा है कि कोई एक जो पेड़ है वो खुद एक अपना ही फल तोड़ के खा रहा है? हैव यू सीन दिस? नो, नेवर। कार्टून में भी ये इमेजिनेशन नहीं हुआ है कि पेड़ खुद अपना ही फ्रूट निकाल के खुद ही खा रहा है। So not at all. So they always do the benevolence for the society and hence they are bearing a fruits. Isn't it a great thing? We never think like this about nature. But actually nature is giving everything to us selflessly. उसका ही दूसरा एग्जाम्पल नेचर का दिया हुआ है, दैट इज परोपकाराय वहन्ति नद्यः। बाय नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ परोपकाराय, फॉर द बेनेवोलेंस ऑफ सोसाइटी। परोपकाराय फॉर द बेनेवोलेंस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के अच्छे के लिए, उनको मदद करने के लिए। नद्यः मीन्स रिवर्स, मेनी रिवर्स, वहन्ति मतलब फ्लोज, वहति इज फ्लोज, वहन्ति इज फ्लो। सो रिवर्स फ्लो फॉर द बेनेवोलेंस ऑफ अदर्स। नदियां बहती है, पानी को अपने में समा लेती है, कंटेन करती है वाटर को, क्यों? स्टोर करती है, व्हाई? फॉर सोसाइटी, फॉर द बेनेवोलेंस ऑफ अदर्स। नदी को जरूरत है क्या पानी की? नहीं है जरूरत। कभी बारिश नहीं हुई, नदी में पानी नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पानी किसको चाहिए? हमें चाहिए। सो फॉर द बेनेवोलेंस ऑफ अदर्स, सेल्फलेसली दे आर फ्लोइंग in their directions and we are getting water. Again a selfless behavior. So basically benevolence is a selfless behavior, दूसरों को बिना मांगे हेल्प करना। चलो थर्ड एग्जाम्पल अगेन फ्रॉम नेचर बट about related to animals. गावः is बहुवचन of गौ, गौ वर्ड। गौ एंड गावः का मीनिंग क्या होता है? काउ एंड काउज। गावः मतलब काउज। आपने वर्ड सुना रहेगा धेनवः, यस। भुक्त्वा तृणानि शुष्काणि पीत्वा तोयं जलाशयात्, सुना है कि नहीं? दुग्धम यच्छन्ति धेनवः, दुग्धम यच्छन्ति लोकेभ्यः धेनवः लोकमातरः, राइट? ये श्लोक हमने सीखा था। सो धेनवः गावः, सिमिलर वर्ड, धेनवः गावः। दुहन्ति मतलब यील्ड्स मिल्क और गिव मिल्क, yelled milk or give milk. परोपकाराय, अगेन फॉर बेनेवोलेंस ऑफ द अदर्स। कभी भी कोई काऊ ने देखा है आपने कि मिल्क मांगा है? नो, हमने लास्ट श्लोका में देखा था, भुक्त्वा तृणानि शुष्काणि, काउज ओनली एक्सपेक्ट थोड़ा सा ग्रास, ड्राई ग्रास एंड वाटर फ्रॉम एनी पॉन्ड। कोई भी जलाशय से आप कोई किधर से भी उसको पानी लाके दो चलेगा, वो ऐसे नहीं बोलती कि मिनरल वाटर चाहिए, आई वांट न्यूट्रिशियस फूड, मिल्क, पनीर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नो, नथिंग, कोई भी डिमांड्स नहीं है, एंड फिर भी शी इज गिविंग अस अ न्यूट्रिशियस फूड, दैट इज मिल्क। ये हमने लास्ट श्लोक में भी देखा था। यहाँ पे भी पोएट सेम बता रहा है कि गावः दुहन्ति, काउज गिव मिल्क टू अदर्स फॉर द बेनेवोलेंस ऑफ अदर्स। खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए मिल्क दे देते हैं सेल्फलेसली। अगेन अ सेल्फलेस बिहेवियर, बेनेवोलेंस। एंड इसीलिए इतना सब कुछ अगर नेचर जो है वो कर रहा है हमारे लिए, तो परोपकारार्थम इदम शरीरम, इदम मीन्स दिस, शरीरम मीन्स बॉडी, ये जो ह्यूमन बॉडी है, कभी ना कभी परोपकार के लिए यूज करो, यूज इट फॉर बेनेवोलेंस ऑफ अदर्स। हमेशा क्या यार सेल्फिश बनते हो? ओके, सीधा सीधा पॉइंट ने हमें बोल दिया कि अरे इतने सारे एग्जांपल्स है नेचर में हु आर डूइंग देयर फंक्शन सेल्फलेसली फॉर योरसेल्फ, फॉर अदर्स, फॉर सोसाइटी। देन एटलीस्ट डू वन थिंग फॉर द सोसाइटी, use your body, use your this body for a good work which will be beneficial for others also and for country also.
Okay. So is there any doubt regarding this third shloka now? Very good. So last time we are revising all the shlokas. पहला था विज्ञानम सर्वधन प्रधानम, that is the wealth of knowledge is best among all kinds of knowledge. Vasudhaiva kutumbakam, the whole world is my family. And paropakararthamidam shariram, this body should be used for the benevolence of others. Okay, students? Okay, so let's revise the recitation part of all the 3 shlokas. और आपका होमवर्क क्या रहेगा? श्लोक नंबर 1, 2 and 3 के सभी क्वेश्चंस आपको नोटबुक में लिखने हैं. एक्सरसाइज फॉर श्लोक 1, 2 and 3. नाउ यू आर इन सेमेस्टर 2, तो ऑलमोस्ट आपको पता है कि क्वेश्चन टाइप्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है. ओके, सो प्लीज राइट इट डाउन in your homework, shlok 1, 2 and 3, all the questions given in exercise. Okay, let's recite the shlok. न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्या धनं सर्वधन प्रधानम्. अयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्. And the third and last one, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम्. Yes, so who will recite all the 3 shlokas once? Yes, Purva. Yes, ma'am. न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभ्राज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धयेत् एवं नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्. सेकेंड श्लोक. One more. अयं निजः परो वेति गणला लघुचेतसाम् उदारचरिता नाम्न वसुधैव कुटुम्बकम्. And third Very श्लोक. good. Yes. परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम्. Very good. Thank you, Purva. So basically everyone please practice this at your home. Again and again I'm saying you ki complete the words compulsory aane wala hai. Okay, so we'll stop it here today. We'll continue with the same topic Sukti Sudha in the next lecture. Till then, thank you so much and Punarmilamah.